बहुत खूबसूरत तरीके से दोबारा छापी है। थैंक यू। लाहौर शहर में ही पब्लिशर थे, बहुत बड़े और बहुत अच्छे और सियाने भी, तो उनके पास पड़ी 2-3 साल। तो मैंने कहा सर छाप दें, कोई मसला नहीं, 10-12 साल से मैं भी यहीं पे रहता हूँ, किसी ने मुझे तंग नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें नहीं पता, इन लोगों को बाज़ दफ़ा लतीफ़ा 10 साल बाद समझ आता है। सजे तो कैसे सजे कत्ले आम का मेला, किसे लुभाएगा मेरे लहू का वावेला। Thank you, FAS Foundation, for having me. And I think everything suddenly becomes very exciting when you're in Lahore, because I thought I was going to a festival. I left in time, but it turned into a bit of a thriller. Like, I didn't know if I was ever actually going to make it because of whatever is happening in your lovely city. One of the very sweet organizers, when we were talking to coming about this festival, they said कि कुछ let's not do anything which will get us jailed, and which is like a real thing, right? No, you don't want to go to jail from here. No, you want to go home. All of us want to go home from here to but this still doesn't guarantee that back our lives, but we can try. Yeah. So let's try. You and me and the rest of you try and make sure that we all go back home safely, nothing bad happens to anybody, because I think what happens is that there are people who have to do their job, right? You know, they will turn up because we are at FAS festival, so I think jail should always be a concern, because he did spend some time in jail for writing poetry. उन पे कोई बम बनने का तो कभी इल्जाम नहीं लगाया, ठीक है? So that's a real concern. Like, we should think about it. So I want to kind of state this right in the beginning, because आप में से किसी एक की ड्यूटी तो होगी, ठीक है ना, किसी भाई की, किसी बहन की, कि जाके बताना है कि कोई वहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिसकी वजह से किसी को जेल जाना पड़े। तो मैं उनके साथ उनको बहुत कि गौर से सुने हमारी बातें। We will say anything that we say, everything that we say, we'll say it with a lot of respect, जो हमारी मुआशरती अखलाकी किरदार है। हम ना कोई गंदा बोलेंगे, ना किसी इदारे की बेइज्जती करेंगे, ना किसी की तौहीन होगी। तो या दैट्स लाइक माय फर्स्ट काइंड ऑफ हाउस रूल्स, जैसे होते हैं ना कि भाई आग लग जाए तो इधर से भागना है। सो दैट्स लाइक दैट थिंग। तो आप लोग भी, मैं भी ऐसे करूँगा, आपने भी ऐसे करना है कि हम सब खैर खैरियत से घर वापस जाए। तो आपका सवाल था कि क्या हुआ? So सर समझ आ रहा है क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो जो which got you here. So the सवाल ये था कि क्या हुआ कि you chose this as your It's lovely to be here. So I don't have like any complaint. No, I think my story is kind of quite typical of a lot of people of my generation, that you're born in a village, which we kind of tend to romanticize, and you grow up there, you go to a sarkari school, and then you become teenager, and the hormones kick in, and you're very bored with that village life, because actually nothing used to happen. You didn't, like, as you would know, there was no Wi-Fi, and there was like no cable TV even back then. So you want to run away to a city, right? And that's how all this country, this kind of city has been made, कि लोग गांव में बोर हो के शहर जाते हैं कि वहाँ पे बड़ी मौजें, वहाँ पे ज़िंदगी होती है। So I also came here as a very young person. So I got admission into a college here. तो लेकिन मुझे वो क्लास में कोई टीचर की बात कभी समझ नहीं आई। So मैं कभी क्लास में गया नहीं। तो वहाँ पे हमारे उकाड़ा में सिनेमा तो थे, लेकिन फिल्में देखने की इजाज़त नहीं थी हमें घर से। तो यहाँ पे मैंने उस साल में 150-200 फिल्में देखी। तो मेरी एजुकेशन हो गई। मैं क्या, मुझे तो सब अब दुनिया की हर बात पता है, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू सब वो हो गया। एंड देन आई ऑब्वियसली वो गांव वाले हिसाब मांगते हैं कि इतना खर्चा हो गया आपकी तालीम पे, तो अब क्या कर रहे हैं? तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा।
So I ran away to and joined the Pakistan Air Force. So I was there for about 7-8 years. Yeah. And I got because मेरा ख्याल था कि ये आज़ादी की ज़िंदगी होगी, लेकिन आपको पता है गांव वाले लोगों को वैसे तो कहते हैं उनमें बड़ी विजडम होती है, लेकिन उनमें बेवकूफ़ियाँ भी बड़ी होती हैं क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं होता. So I'd never actually known anybody who was like in the military establishment. So I ended up there thinking like, I'm going to be an independent person. I'm going to fly planes and I'll have a very, very glamorous life. So I spent like 7-8 years there, but वहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आया. But they used to have like I still think that the Pakistan army and establishment, they have like the most fabulous libraries, I think, in the country. और वो लेकिन पढ़ता तो कोई नहीं, like you don't go to the army to kind of read literature. So I was like one of those nerds who would run away from their stuff and go and hide in libraries. तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी छुप के जान बचाने के लिए. और जो काम एक अरसे तक आप करते रहते हैं, फिर आपको एकदम गलत फहमी हो जाती है that maybe I can do this as well. So I kind of drifted into journalism, and then I started writing novels, and so that's like those are the two things that I still do. I write novels, and I do bits of journalism. And it's a very kind of, I think, very average story of anybody who's kind of migrated from a village to a city and kind of, तो ये है. और कुछ पूछे? आप लोगों की मदद से पूछते रहेंगे. But journalism can be very matter of fact, right? Yeah. Report it straight, report facts as you see them. You would think so, but yeah. Yeah. We would like to believe, yeah. No, I think you should open read any newspaper, or open I think they have way more fiction than I've written. Ever. So that's and much better, fast paced. So sorry, I interrupted you. No, really sorry. I love that. I love that. Yeah. So I was a journalist, and ये सभी लोगों में काफ़ी पुरानी बीमारी है, मैंने ईजाद नहीं की, उनको शौक होता है कि ये तो हम कर रहे हैं काम, लेकिन एक दिन हम किताब लिखेंगे, राइट? तो और हर एक के दराज में कोई नोटबुक पड़ी होती है या कंप्यूटर पे फाइल उन्होंने बचा के रखी होती हैं. तो वन डे, so it was very common disease, and I was and with journalism also you get kind of facts, you get bored sometimes. So I was trying to, and every journalist wants to do a big story, ठीक है ना, कि मैं कुछ ऐसा धमाके खेज कहानी करूं. So हमारे जब हम जवान थे तो वो अपना हमारे मरहूम जनरल जावल हक होते थे शहीद, उनका हादसे में एक जहाज में वो हो गया. तो मेरा चूंकि एयरफोर्स का भी बैकग्राउंड था, तो मैं पहले यूज्ड टू ऑब्सेस कि हाउ डज अ प्लेन go down, it's basic kind of, it's a very tragic event, so please don't laugh anybody. But I was stunned with the fact that हमारे कल्चर में तो आमतौर पर ये होता है that when somebody dies, दुश्मन भी मरता है तो आप कुछ नहीं करते, right? सिर्फ आप दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, लाहौर वालों ने सुना होगा बहुत अक्सर. So I was quite stuck with the fact कि 15 के मिनट तक तो पूरी कौम जो थी वो खामोश थी, मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल जिसे कहते हैं, और उसके बाद लोग सड़कों पे नाच रहे थे. हमें लगा कि किस तरह की बगारत कौम है कि हमारा शहीद सदर मर गया और ये लोग नाच रहे हैं सड़कों में. So I got very curious, so I tried to investigate the event as a journalist. So I kind of tried to interview people who were around. I looked up कि जो जहाज था उसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं, और जो रिपोर्ट्स बनी थी उस पर. And I couldn't get anywhere, near, even the facts, there were cover-ups to cover-ups to cover-ups, there were so many layers. तो मुझे नॉवल लिखने का शौक था. आप में से भी अगर किसी को शौक हो तो आमतौर पे सबका ख्याल होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी पे नॉवल लिखूंगा. sort of my life is so interesting. मेरी ज़िंदगी में तो कोई ऐसा वो नहीं था. So I realized that he is like a ready-made murder mystery plot. कि सबको पता है ये हो तो क्या है,
but nobody's actually interested कि ये हुआ कैसे really like I was like उसके बाद हुकूमतें आई उनके अपने जो लोग शहीद हुए थे उनके अपने बेटे हुकूमतों में थे 10 साल 20 साल तो किसी को कुछ वो नहीं था कि चलो जान छूटी अब आगे चलते हैं which was like very curious for me so I kind of thought कि okay as a journalist I can't do it but you know there's a thing called novel that I kind of obsessed about so I started like you know writing that I'll just create a character who kind of claims कि क्योंकि सब कहते हैं मैंने तो नहीं किया जो भी हुआ हुआ अच्छा है लेकिन मैंने नहीं किया मेरा इसमें कोई हाथ नहीं so that was like very disturbing fact कि पूरी कौम कह रही है बंदा मर गया 8-7 बहुत सीनियर लोग उनके खानदान वाले भी हैं so like मैं पर्सनली पेन को महसूस किया जो पूरी कौम ने महसूस नहीं किया तो मैंने वो 4-5 साल जो है वो फिक्शनल उसके वो बनाते हुए कि जिसने मारा होगा वो क्या सोच रहा होगा उसका क्या मसला होगा सो इट वाज लाइक वन ऑफ दोस थिंग्स दैट स्टार्ट एज अ जोक दैट ओके पूरे कमरे में बैठा हुआ मैं आपसे पूछूं कि ये काम किसने किया है राइट एंड समबडी विल लाइक अनलाइकली विल रेज हैंड कि जी ये मैंने किया है मेरी तरफ देखें सो आई जस्ट क्रिएटेड दैट कैरेक्टर एंड देन वो आप एक किताब लिख लेते हैं उसको 4 लोग पढ़ लेते हैं कहते हैं कि बड़ी अच्छी लिखी है फिर आप कहते हैं कि अब तो आप नॉवेलिस्ट हैं तो दूसरा लिखना पड़ेगा So I wrote another one and then another one. और अभी मैंने एक चौथा भी खत्म किया. Yes. तो वो भी ये साल है. Okay, so we have something to look forward to. ये जो process है आपने बताया because we had a talk and you know wanted people to understand the process. So something triggered. The first point is कि you found a story, you thought कि ये बहुत exciting है and you thought कि इसमें इतना मीट है कि ये कोई एक बहुत अच्छी किताब बन सकती है लेकिन वो जो 3-4 साल का एज अ राइटर आपका टाइम होता है व्हेन यू थिंक अबाउट इट व्हेन यू ऑब्सेस अबाउट इट व्हाट डज दैट डू टू यू एज अ पर्सन आई मीन डू यू गेट रियली immersed in that or are you able to keep these two things separate? No, I think it's like it's a very lonely process. जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो अकेला बंदा ही बैठ के किताब पढ़ता है नेटफ्लिक्स वगैरह बाकी चीज़ें आप लोग दो बैठ के या फैमिली बैठ के देख सकती है बट लाइक बहुत प्यारे अच्छे लवर्स भी एक किताब को साथ बैठ के नहीं पढ़ रहे होते नहीं पढ़ी नहीं जा सकती सो इट्स लाइक वेरी इंटीमेट एक्सपीरियंस तो इसी तरह से लिखना भी जो है दैट्स ऑल्सो लाइक अ वेरी लोनली एंड लॉन्ग प्रोसेस और यू आर ऑलवेज फिल्ड विद डाउट्स एंड माई बेसिक डाउट यूज टू बी कि अगर पूरी कौम को जनरल जवाहर की मरने की परवाह नहीं है तो तुझे क्यों like why would anybody if nobody cares like you know it's been I don't know उस वक्त तक 20-25 साल हो गए थे जब मैंने लिखना शुरू किया था so yeah you're always like you know filled with doubts that why should anybody care about this story but it's like one of those kind of lonely obsessive things that you know sort of you keep going back to it and then something happens which gives you hope कि हाँ हो सकता है maybe I can go on with it but it's always like you're always full of self doubt like you know आपकी sanity जो है वो थोड़ी सी आपको लगता है कि मशकूक है और दूसरा एक और भी उसमें होता है कि आप अपनी तरफ से तो लोगों को तो ही बता रहे होते हैं घर वालों को कि मैं बैठा हुआ नॉवल लिख रहा हूँ लेकिन आप कर कुछ नहीं होते मतलब ऐसे ही पेज खोल के बैठे हुए हैं या आजकल गूगल कर रहे हैं उसके मैं रिसर्च कर रहा हूँ ठीक है या घर का काम नहीं करना कि नहीं मैं मसरूफ हूँ मेरा नॉवल चल रहा है टाइप सो यू ऑलवेज कैन ऑल्सो थिंक दैट कि मैं तो ये बहाना बनाया हुआ जिंदगी से भागने का सो यू ऑलवेज फुल ऑफ दोज डाउट्स इन माई प्रोसेस I have friends who are really good writer friends who do a lot of research and plot and plan. उनको पता होता है कि पेज नंबर 40 पे ये दरवाज़ा खुलेगा पेज नंबर पता नहीं 83 पे ये दो लोग मिलेंगे 99 नंबर पेज पे वो सोएंगे 140 पेज पे कत्ल होगा राइट यू नो दे काइंड ऑफ फुली व्हिच इज अ वेरी सेंसिबल वाइज वे ऑफ डूइंग समथिंग but I have like this problem that if I already know the story then why would I you know I know and why would I write it so I kind of discover the story in the process of writing कि अगले पेज पे क्या होना है that's like my I think that's what keeps you going and so forward. Not even an end in mind
or you I have mean, a bigger... sometimes it's easy. वो पहले नॉवल में तो आसान ही था कि ये तो होगा ही, अब मैं बचा तो मैं भी नहीं सकता, इतना भी अच्छा मैं नॉवलिस्ट हो जाऊं तो जनरल जावला को तो मैं नहीं बचा सकता, शहीद को। तो वो तो एक मेरी खुशकिस्मती थी, कौम की बदकिस्मती थी तो कि वो मुझे उस तरह का सब्जेक्ट मिल गया। लेकिन उसके बाद yes, you do have like, you know, sort of vague kind of ideas कि आखिर में who's going to live and who's going to die and like, you know, but it always keeps changing. Like हर 2 महीने के बाद आपको लगता है कि जो पिछले महीने आइडिया था वो कितना फजूल था, जो उस वक्त आपको लग रहा था कि आज तो मोहम्मद हनीफ छा गया, but like, you know, 3 months later you're kind of, you know, full of doubts and you change things as you go along. I once heard you say in another session like this कि your job as an author is कि जो अगर लोग आपके लिखे हुए झूठ को सच मानना शुरू कर दें तो you define your success with that. Is that still how you, or not झूठ, लिखे हुए झूठ को, आपके लिखे हुए को believe करना शुरू कर दें और सच मानना शुरू कर दें, तो you look at, you meet people. Yeah, sometimes it can be scary कि आपने बिल्कुल झूठ लिखा है और पूरी कौम कह रही कि इसको पता है ये सच क्या है। It's like my like most scary moment in my life was कि एक बहुत सीनियर, क्या सबसे सीनियर तो वही होते हैं ना जो ISI के चीफ होते हैं। सो वो रिटायर्ड हुए थे नए नए, तो मैं किसी तरह की अदबी महफिल में उनसे मिला, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कोने में ले गए, ठीक है ना। तो मुझसे पूछने लगे कि बेटा तुमने क्या ज़बरदस्त किताब लिखी है, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सोर्सेज क्या है। तो उस दिन मुझे हल्का सा डर लगा। वो खुद भी किताबें लिखते हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी। सर चीज़ होती है नॉवल, तो उसमें झूठ होता है, तो बट उनको यकीन नहीं आया कि नहीं तुझे कुछ पता है तो बता नहीं रहा। मैं बड़ी मुश्किल से मैं ऐसा नहीं। Okay, wonderful. And that's made you think it was very, very successful. You got everything. It was scary, I think, at that point. और चूंकि हम लोग तारीख वगैरह नहीं पढ़ते, तो काफ़ी मुझे बच्चे भी मिलते हैं, वो आजकल वो स्कूलों कॉलेजों में भी कुछ जो पॉश स्कूल है उनमें ये अंग्रेजी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो वो भी कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं कि अच्छा जो है तो ये ऐसे ही हुआ था, which is kind of fascinating because we have like such big holes in our history, right? So anybody can get up and make shit up and say कि ऐसे ही हुआ था। और हम लोग रोज सब यही करते हैं, साफी भाई भी यही करते हैं, दानिश्वर भी यही करते हैं। सो वो एक उसमें वो रहता है कि ये ऐसे हुआ था या नहीं हुआ था। और उसमें दूसरी बात ये भी है कि जो जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ी होती किताबें, ये नॉवल नहीं पढ़े होते, तो वो कभी नॉवल को पढ़ते हैं तो विच इज़ लाइक एन आर्टिस्टिक सक्सेस कि वो हर चीज़ पे यकीन करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन साथ थोड़ा सा डर भी लगता है कि मतलब कुछ और अगर 2-3 किताबें और पढ़ी होती तो फिर शायद आपको मज़ा भी ज़्यादा आता और फिर आपको ऐसे ना लगता जैसा कि लग रहा है। जिन लोगों ने सिर्फ एक किताब पढ़ी होती है ना, वो काफ़ी ख़तरनाक लोग होते हैं। तो थोड़ा सा मुझे तो लगता है कम से कम एक आध और पढ़ लेनी चाहिए। तो कितने सारे खतरनाक लोग यहाँ बैठे हैं मेरे किताब वाले। Let's identify that. Wonderful. So satire has been used, Hanif bhai, for a long time. You know, बहुत सी ऐसी जगहों पे वो कहने के लिए जो नहीं कहा जा सकता था, कई दफ़ा कहलवाने के लिए जो कहलवाना चाहते हैं। So plays में, stage में, theater में हम देखते हैं। Did you study that as a subject or as an interest when you started writing this? You could have chosen a very different way to write the same story that your first novel. तो ये जो आपकी choice थी कि मैंने इस form में लिखना है, this was, I mean, this just happened or this is who you were? Or this was plausible? I think you become what you write. I don't know. I was like मैं क्या हूँ या मुझे कैसे लिखना है, but because in those times people who grew up in the 80s, तो उस वक्त एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था कि लोग जो है और कुछ कर तो नहीं सकते ना, डंडा चल रहा होता है, ठीक है ना, तो वो पावरलेसनेस होती है। सेशन का नाम पावर ऑफ द सैटायर, लेकिन एक पावरलेस होती है, आप कुछ कर तो नहीं सकते। तो लोग पीपल स्टार्ट मेकिंग रैंडम जोक्स अबाउट पीपल हु आर इन पावर एंड दे डू इट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग। कि अगर और उस ज़माने में व्हाट यूज्ड टू फैसिनेट मी कि मतलब उस ज़माने में ज़ाहिर इंटरनेट नहीं था। एक लतीफ़ा आपने सुना है कराची में, ठीक है ना,
किसी के बारे में, मरहूम सदर के बारे में, ठीक है। अगले दिन आप किसी काम से गए हैं पेशावर, तो वहाँ पे भी वही बंदा आपको लतीफ़ा सुना रहा है. सो आई थिंक देयर इज लाइक दिस कलेक्टिव काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म कि लोग जो हैं वो लतीफ़े एक दूसरे को सुनाते रहते हैं कि और कुछ कर नहीं सकते. सो इट हैज़ लाइक अ सर्टेन काइंड ऑफ पावर व्हेन इट वर्क्स. जो आखिरी जैसे हैं हमारे सदर जो थे जनरल मुशर्रफ साहब, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल उनको लोगों ने ऐसे मजाक उड़ा के हुआ है, और मतलब कोई ऐसी मेरा नहीं ख्याल थी कोई वो लड़के आके उनके बारे में नारे लगाते थे पता नहीं क्या कि जाके जांचो मुशर्रफ वो मुशर्रफ पता नहीं क्या कर दे पांडे तो मुशर्रफ, इट वाज लाइक स्लाइटली मिसोजिनिस्टिक. बट आई थिंक आखिर में तो यही हुआ ना कि आपको पावर को चलता रहता है मजाक, लेकिन जब तक डंडा चल रहा होता है उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता. आई थिंक थोड़ी सी जब स्लिप होती है बंदे की पावर, तो वो लतीफ़े जो हैं वो उस वक्त शायद काम आते हैं. बट जब डंडा चल रहा होता है आप मतलब मैं जो है बहुत इज्जत के साथ जो है बहुत एहतराम के साथ अगर जो भी हमारे इस वक्त हैं उनके बारे में कोई लतीफ़ा सुनाऊं तो ना उनको कोई फ़र्क पड़ना है, ना आपको पड़ना है, ना मुझे पड़ना है, ना मतलब अल्लाह करेगा फैज़ फेस्टिवल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे. सो देयर इज़ लाइक it comes out of like this utter hopelessness also. Like, you know, when you can't do, it's like the weapon of like the weakest of the weak. And that's why it catches up with people as well, because a lot of people sometimes it does and sometimes it doesn't. बाज़ दफ़ा लोग नहीं हंसते और लोग ये भी कहते हैं कि भाई इतना सीरियस माहौल है तो आप इसमें ये इस तरह की लतीफ़े वाली ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इज ऑलवेज देयर. बट आई डोंट थिंक कि मतलब आप फर्ज करें आप एक गन निकालें, ठीक है ना, आप मेरी तरफ कर दें, अब मैं आपको अच्छे से अच्छा लतीफ़ा भी सुना लूँ, ठीक है ना, तो मेरा तो मतलब काम नहीं होगा ना. इख्तियार तो आपका ही है, मैं तो मतलब वो लतीफ़ा सुनाने वाले का तो कोई उसमें आई मीन लेकिन होप कि शायद आपके दिल में रहम आ जाए. लेकिन आमतौर पर मैंने देखा आता है मेरे ज़ाती की ज़रूरत. अब मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के कि पहले से दूसरे नावल की जर्नी क्या थी, लेकिन देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू डू. यू आर अ जर्नलिस्ट एट कोर, ठीक है, सो राइटिंग नॉवेल्स एंड ऑथरिंग. आपने एक शेर में गाने के लिरिक्स भी लिखवाए गए आपसे, ठीक है. आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो दिस. देखें जो दिहाड़ीदार होता है ना उसको दीवार बनानी हो छत बनानी हो जो आके कहे तो हम लोग कर लेते हैं. तो उसमें मतलब कोई वो आर नहीं है, कलम की मजदूरी करनी है. तो मैं तो वैसे आजकल टिकटॉक पे भी हूँ, चेक कीजिएगा. तो लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ राइटर हैज टू अर्न अ लिविंग. बच्चे पालने होते हैं, महंगाई भी सुना आजकल काफ़ी. So I do like, you know, sort of anything. So between your journalism and you know what you write as a writer, इनमें से कौन सी दिहाड़ी है और कौन सा what defines you? हर चीज़ दिहाड़ी है. देखें everything is work and I have to kind of you know कि मैं बट होता ये है कि मतलब नावल लिखना जो है इट्स लाइक लंबा 5-7 साल में, क्योंकि सुस्त हूँ 3 साल कहता हूँ 5 साल हो जाते हैं फिर 7 साल हो जाते हैं. जर्नलिज्म इज़ लाइक मोर इमीडिएट. लेकिन आमतौर पे होता ये है कि यू डूइंग जर्नलिज्म एंड एट सम पॉइंट यू गेट बोर्ड कि आप गए आपने देखा इतनी मिजरी इतना मतलब यू नो दिस काइंड ऑफ यू नो एंड यू से कि नहीं इससे तो बेहतर ये है कि कमरे में बैठो, ठीक है ना, अपनी नोटबुक खोलो और नावल लिखना शुरू करो एंड यू काइंड ऑफ स्टार्ट मेकिंग अप योर ओन वर्ल्ड बिकॉज यू रियली sick of this real world that you live in and that you have to deal with where you feel like really powerless. कि आप लिख तो लेते हैं कुछ, उसको आपको पता है कि ये बंदा जो है वहाँ से उठाया गया है. मेरे बहुत से दोस्त, मैं कराची में रहता हूँ अक्सर, तो कराची से बलूचिस्तान से कि आपके जानने वाला उठाया गया है, आप 6 कहानियाँ उस पर लिखते हैं, आपको पता है कि इससे कुछ नहीं होना. फिर जब उसकी लाश मिलती है किसी सड़क के किनारे तो आप कहते हैं कि आपका मकसद क्या है, ये तुम किस तरह की क्या सहाफत कर रहे हो, इससे क्या होता है. तो देन यू काइंड ऑफ सेइंग अच्छा मैं बैठ के नावल लिखता हूँ
एंड दैट अगेन इज अ लोनली प्रोसेस। वो 2 महीने बाद आपको वो लगता है कि यार ये नॉवल में भी गंद शुरू हो गए हैं, तो मैं इससे भागना चाहता हूँ, देन यू अगेन गो बैक टू जर्नलिज्म। तो आगे पीछे वो चलता रहता है। वो अपना यहाँ पे लाहौर शहर में मुनीर न्याजी साहब होते थे, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, तो उस तरह की वो आपकी कैफियत होती है कि मैं जैसे अवकाड़ा का आपने जिक्र किया, अगर मैं वहाँ हूँ तो आपको कराची याद आता है, कराची में हूँ तो मैं कुछ अर्सा लंदन में रहा हूँ, लंदन याद आता है, और लंदन में हूँ तो कहते हैं हाँ है चलो लाहौर बड़े अरसे से नहीं देखा, लाहौर चलते हैं। सो इट्स लाइक वो एक मुसलसल जो कैफियत होती है ना अपना कि दिल ना लगने वाली, आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली व्हाट keeps it going. I'm just like guessing it. I don't know. I don't know if it answers that. That is very interesting because that probably moves towards आपके अगले piece की तरफ, आपकी अगली thought की तरफ, आपके अगले expression की तरफ. It may have that impact on that as well. I hope so. I believe कि अभी आपने you've also started doing पंजाबी में or other things and exploring. So ये जो journey साथ साथ चलती आ रही है, is it your love for exploring new ways of expression or just experimenting with whatever comes your way? I think वो पंजाबी का भी again it's basically like coming home, ठीक है ना। तो हम तो उस जनरेशन के हैं, जैसे मैंने कहा था कि जो गांव में पढ़ के आते हैं, तो हमें तो जो उर्दू भी पढ़ाई जाती थी प्राइमरी स्कूल में, वो पंजाबी में पढ़ाते थे। तो आप हाई स्कूल में चले गए तो आपको अगले मैट्रिक तक लाइक 10वीं जमात तक आपने सीखी उर्दू, ठीक है ना, और आपने मतलब रट्टे लगाए या जो भी किया, लेकिन आपको आ गई, आप उर्दू में मजमून लिख सकते हैं या बात कर सकते हैं शहर वालों से। उसके बाद आ गए आप लाहौर शहर, आप क्लास में गए तो वहाँ तो बात हो रही है अंग्रेज़ी में, तो आपको तो कख समझ नहीं आएगी कि भाई ये होना क्या है। तो उसमें पंजाबी चूँकि राइटिंग का कोई वो स्कोप है नहीं, जवानी में हर एक की तरह मैंने भी कुछ नज़में वज़में जो हैं पंजाबी में लिखी होंगी। बट देन समबडी सेड कि आप ये पंजाबी में लिखा करें, तो मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना वो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आप ज़रा वीडियो पे आके करें। एंड आई हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी कैमरा शाय। मैं टीवी पे भी बहुत शायद ही कभी ज़िंदगी में आऊँ, तो मुझे बहुत डर लगता है वो कि मतलब ये जो है ना ये कोई डार्क आर्ट किस्म की चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आती। सो मैंने वो हिम्मत की, तो उसमें यह है कि नहाना धोना पड़ता है, ठीक है ना, शर्ट इस्त्री करनी पड़ती है, एंड देन यू कैन हैव सिट डाउन, बट आफ्टर दैट बिकम्स लाइक रियली इजी, बिकॉज कोई सारी ज़िंदगी आपने घर में पंजाबी बोली है, आपने माँ ने आपसे पंजाबी बोली है, भाई बहन वो आपको बोलते हैं, तो जैसे उर्दू में लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि यार कुछ अच्छा सा कुछ तरकीब हो, या अंग्रेज़ी में कोई इस तरह से बात घुमाई जाए, तो उसमें इट्स लाइक वे मोर काइंड ऑफ नेचुरल। आई डोंट नो, आई मीन एवरीथिंग इज लाइक यू नो, आप जुबान में इतने अरसे से लिख रहे हैं तो मतलब वो भी है, बट उसमें जो है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा जो है ना खुद ही आपको चीज़ें जो हैं रवानी उसमें ज़्यादा आ जाती है। एंड आई वाज क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज कि मैं वो उकाड़ा में, हमारा ख़ानदान भी वहीं पे है, गाँव में है उसके पास, तो वो 30 साल से तो मैं ये कर रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ, सहाफ़त कर रहा हूँ, वो थोड़े से मशकूक होते थे कि ये लड़का करता क्या है, क्योंकि वो टीवी पे होता है कि जर्नलिज्म या तो टीवी पे होता है या जंग अखबार में कॉलम आए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने वो नहीं, तो जब से मैंने ये पंजाबी वाला करना शुरू किया तो मेरी काफ़ी इज्जत बनी। पहली दफ़ा मेरे गाँव वालों ने और शहर वालों ने कहा ये तो साफ़ी बोला। सो दैट इज़ ऑलवेज very pleasing to kind of get some validity like in your own गली। पहले उन्होंने किताब लिखी, कौन सी किताब हमने कौन से पढ़ी है, किसी ने पढ़नी, सो उसमें काफ़ी जो है तो वो जब दिल करता है या कोई बात आपको लगता है तो आप उसमें कर लेते। अरे भाई, जस्ट टू इंक्लूड आप सब लोगों को भी, अगर किसी को लगे कि कोई किसी भी वक्त, बिकॉज टाइम बहुत जल्दी यहाँ ख़त्म हो जाता है, ये बातें तो चलती रहती हैं, सो एनीबडी हैज़ अ क्वेश्चन। मैं जब आ रहा था सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मुझे किसी ने यहाँ पे आके, जो मुझे नहीं पता था ज़्यादा पंजाबी वीलॉगिंग का, तो आई मेट समबडी एंड सेड कि यार मैं तो पंजाबी वीलॉगिंग के मतलब करूँगी, तो आई मेट अ लवली लेडी हु हैड अ क्वेश्चन वुड बी देयर। उनके पास आते हैं, कैन आई हैव 1 minute? या जी, श्योर। ओके, so I love the title that whosoever like festivals
creative team is the title is यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। तो अभी वो बात शुरू की थी आपने वो कि मैंने वो किताब लिखी केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज उसका नाम था, जो सदर मरहूम की शहादत के बारे में, और उनको ट्रिब्यूट था, लव लेटर था, मैंने अपनी तरफ से लिखा और कोई मतलब वो पढ़ते रहे, बच्चे भी पढ़ते थे, वो भी पढ़ते थे, और मेरी थोड़ी बहुत मतलब मुझे लोग राइटर भी समझने लगे। तो 10 साल तक जो है वो बिल्कुल मज़े से, कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर उसका उर्दू तर्जुमा जो है वो किसी दोस्त ने किया था, उन्होंने कहा कि ये छापना चाहिए। तो बल्कि लाहौर शहर में ही पब्लिशर थे, बहुत बड़े और बहुत अच्छे और सियाने भी, तो उनके पास पड़ी 2-3 साल। तो मैंने कहा सर छाप दें, कोई मसला नहीं, 10-12 साल से मैं भी यहीं पे रहता हूँ, किसी ने मुझे तंग नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें नहीं पता, इन लोगों को बाज़ दफ़ा लतीफ़ा 10 साल बाद समझ आता है। तो मुझे बड़ी आई हंसी, मुझे ये मैंने नहीं कहा, ये आपने, नहीं सेशन किसका है, जेल किसने जाना नहीं, उन्होंने ऐसे ही हमारी जनरल उसकी तरफ कि बाज लोग जो है वो उनको लतीफ़े बाद में समझ आती है। तो वो छपी, हमारी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त पब्लिशर हैं, हुरी नुरानी ने छापी, और हमने मतलब अच्छी बातें की, लोगों ने कुछ उस पर सवाल भी उठाए गए कि ये लफ्ज़ ऐसे होना चाहिए या ऐसे नहीं। तो वो 6 महीने बाद रात को, आधी रात को, इनके दफ्तर पे, इनके घर पे, मतलब जो होता है ना मिडनाइट नॉक, पुराने ज़माने में होता था कि रात को वो लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई इधर क्या हो रहा है। तो किताबें वो उठा के ले गए। अब बहुत ज़ाहिर है डर भी लगता है, परेशानी भी होती है, समझ में नहीं आती कि हमने क्या किया, हम तो ये धंधा 12 साल से कर रहे हैं। एक बात अंग्रेजी में चल रही थी, वही उर्दू में आ गई, और शुस्ता उर्दू में है। तो वो भी बहुत अच्छे, आप जो भी आप में से वो नोट कर रहे हैं, तो बहुत प्रोफेशनल लोग थे। पूरी विल टेस्टिफाई दैट दे वर एब्सोल्युटली कर्टियस, ठीक है ना। और बाद में उन्होंने मुझे बात करके बताया भी कि क्या हमने किसी एक को थप्पड़ मारा, बिल्कुल नहीं मारा किसी को थप्पड़। लेकिन वो जब कोई कहता है ना किसी को कि मैंने आपको थप्पड़ मारा, इसका मतलब ये है कि वो सोच रहा है इसके बारे में लेकिन उन्होंने नहीं मारा। बहुत तो वो ले गए, तो उन्होंने भी बताया नहीं, वो बहुत कर्टियस थे। उन्होंने कहा हमारे ऑर्डर हैं बस, तो हम तो उठा के ले जा रहे हैं, और वादा भी किया ना था कि वापस कर देंगे, जैसे होता है ना ऐसे थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे। तो की तो नहीं ना उन्होंने वापस, नहीं। तो वो पढ़ रहे होंगे मजे में, ठीक है ना, हाँ बेच रहे पढ़ भी रहे होंगे, बेच भी होंगे, पढ़ते भी, ऐसे नहीं, ऐसे हो रही, ऐसे नहीं, पढ़ते भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ पढ़ते होंगे। कोई वहां पे मेजर साहब बैठे हुए ड्यूटी के टाइम पे किताब पढ़ रहे होंगे आपकी छापी। तो उसमें उनको ऐसे ही किसी ने बताया मुझे, वो मैं उस पर लंबी तफसील में नहीं जाना। मैंने पूछा कि क्या क्या बुरा लगा आपको उसमें, या किसने कहा। तो उसने कहा कि जी आपकी किताब में एक सीन है कि जो हमारे मरहूम सदर हैं, वो उनके साथ एक सऊदी शहजादे हैं कोई, तो वो ना उनके साथ क्या कहते हैं उसको उर्दू में लफ्ज़ जो बच बचा के कहा जा सके, या बदफेली कर। मैंने मतलब अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैं तो ऐसी बात कभी सोची नहीं, ना सोच सकता हूँ, ना ऐसे कभी होता है। आप नॉवल में भी यू कांट गेट अवे विद इट, और है भी नहीं बिल्कुल। लेकिन उनका ख्याल था कि ये हुआ है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए मैंने कहा सर आपकी ज़हनियत तो मेरे से भी गंदी है, और मेरे दोस्त कहते हैं तो मेरी ज़हनियत गंदी है। लेकिन फिर हमने ये फैसला किया, मैं यहाँ पे बात ख़त्म कर रहा हूँ, कि हमने फिर फैसला किया है कि हम उसको बिल्कुल साफ़ करके, आपको अगर कोई बात गंदी थी उसको निकाल के साफ़ करके शुस्ता तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से दोबारा छापी है। थैंक यू। और यहाँ पे बाहर इनके मकतबा दानियाल के स्टॉल पे मौजूद है। तो आप लोग प्लीज़, अगर कितने की है हुई जी, पूरा शेर आप बताएंगी, अंदर लिखा हुआ है। हाँ मैं पूरा शेर भी आपको। सजे तो कैसे सजे कत्ले आम का मेला, किसे लुभाएगा मेरे लहू का वावेला। थैंक यू सो मच हुरी, थैंक यू। अभी तो आपके 25% भी या 10% भी शायद हम मुश्किल से पहुंचे होंगे। सो मे बी नेक्स्ट टाइम वी हैव मोर टाइम। प्लीज योर क्वेश्चन। I'll take the liberty of switching gears and switch to Punjabi. Please sir, किसी को आपकी दस्या है कि इस तरह वीलॉग की वजह से मकबूलियत
कुछ हुई, लेकिन साढ़े को जवान बच्चे आंदे हैं, जैसे मेरा बेटा टीनेजर, वो इतना अवेयरनेस ना पंजाबी च क्रिएट हो रहा है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ईस्टर्न पंजाब का कल्चर, उन्होंने सॉन्ग्स, एक तरीक जो है छोटे बच्चे बैठे देखते तो स्पीक पंजाबी ना सीखते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ना करो वाकई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਛ। जी जी बिल्कुल, क्विक सा जी। जो मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं उनमें इनकी किताब एक्सप्लोडिंग मैंगोज, ईमानदारी की बात है, मैंने उसे बेस्ट पाया है, मेरी फेवरेट है, क्योंकि उसमें डिफेंस फोर्सेस के बारे जितना सच इन्होंने लिखा है वो कर्नल मोहम्मद खान और ब्रिगेडियर सदीक सालिक भी नहीं लिख सकते। मेरा प्यार ज्यादा है उनसे, इसलिए सच्ची बात है। क्वेश्चन ये है कि इसी तरह की किताब जो आपने ज़ाउल हक साहब के बारे में फरमाई, इसी तरह की खूबसूरत सी किताब अगर आप मेहरबानी फरमा दें तो क्या आप जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में लिख दें? ये काम आप खुद कर लें। मैं एक थोड़ा सा इसमें एक इजाफा करना चाहूँगा कि इस टाइम में वी कुड ओनली फोकस एंड स्टार्ट ही अभी हमने किया था और एक किताब पे रहा। हनीफ साहब की इस खूबसूरत जो उन्होंने काविश है, जो एक्सप्रेशन है, देयर इज सो मच मोर टू दैट। ठीक है, हिज सेकंड बुक वाज ऑन अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, राइट, और वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी और वो वाला एंगल भी उसमें उन्होंने दिखाने की और हाईलाइट करने की कोशिश की थी। तो ही हैज़ यूज्ड हिज पावर फॉर एक्सप्रेशन like, you know, for multiple things. So I think he deserves a huge round of applause. Obviously, this speaks to us more right now. नॉवल जो है आपने बहुत ज़्यादा मैंने चूँकि जो भी आप दुनिया का अदब पढ़ते हैं वो फॉर लाइक यू नो रीजंस वो हमें अंग्रेज़ी में मिलता है। अगर आप स्पेनिश का या रशियन भी फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ तो अंग्रेज़ी में ही रहे ना, हमें हमारे तक तो अंग्रेज़ी में पहुँचा। अरबी नॉवल भी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेज़ी में, तो उसकी वजह से जिस तरह से मेरा ख्याल है म्यूजिशियंस होते हैं, अगर आप वो क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप यही उसी तरफ आप जाएंगे, अगर आप कुछ और सुन रहे हैं तो आप उसी तरफ जाएंगे। तो वो उस वजह से मेरा ख्याल है कि क्योंकि नावल आपने बहुत सारे अंग्रेज़ी में पढ़े होते हैं जिनसे आप फैसिनेट होते हैं, तो जब आप लिखने बैठते हैं तो आपके जहन में उस तरह का वो पहले से बना होता है। लेकिन ये लोग आमतौर पर ये एक और भी इससे वो जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं कि आप ख्वाब किस ज़ुबान में देखते हैं। so I really don't have an answer। मैंने उसका एक सही अच्छा जवाब जो है इसी तरह का सवाल, वो एक अर्जेंटीनियन राइटर है इसाबेला अयांदे, इज अर्जेंटीनियन। हाँ, तो बहुत मशहूर, बचपन से हम भी पढ़ते आए हैं, लोग उनको बहुत पढ़ते हैं। तो वो चिलियन, सॉरी, थैंक यू। सो वो स्पेनिश में लिखती थी, तो अभी आखिरी पता नहीं 5, 7, 8 साल में तो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया। तो उनसे भी कोई उनका हमवतन यही पूछ रहा था कि ये क्या मतलब कि ख्वाब तुम किस ज़ुबान में देखती हो। तो वो कहती है कि आई डोंट नो कि मैं ख्वाब किस ज़ुबान में देखती हूँ, बट आई स्टिल मेक लव इन स्पेनिश। और मेरे लवर को स्पेनिश नहीं आती, उसने तो आज तक शिकायत नहीं की। सो आई डोंट नो इफ देयर इज लाइक करेक्ट आंसर टू। आई थिंक उनके इस जवाब के बाद कहने को कुछ कम रह गया है और वक्त भी पूरा है। तो इस तिश्ने की जो रह गई है बहुत सारे सवालों की, बहुत सारी बातों की, आई थिंक वो भी इनकी लिखाई की भी खूबसूरती है कि ही कीप्स अस वांटिंग मोर। So I think this is the right time to wrap this up. For many more, please put your hands together to Muhammad Haneef. What a wonderful, wonderful